Hello, students. Here I'm trying to make one video on question papers. So you just listen it and read the question. I think it will help you in your exam. So you may be asked that communication is an active process, right? Communication is what you know that is encoding the message, है ना? Then decoders means listeners or readers, they will decode the message. Then response, which is called feedback, right? And then it completes one circle, which is called communication. Suppose example, if I am speaking to you, right? So this is what I am doing right now. That is one way communication, and that's not complete circle. Why? Because I'm not able to see you, your expressions, reactions. That is why there is no feedback even, right? So that is just encoder encodes the message what I am doing. But decoder, you will listen to me and you decode, but you, if you don't respond, so that communication is not completed. So this is one way communication, but generally communication is two way, when encoder and decoder, or technical words are encoder or decoder. Otherwise writer and reader, or speaker or listener. So that two people, reader or sorry, writer or reader must be there. Otherwise speaker or listener must be there. So here what they are talking about, that's a communication is an active process which involves, so that is what involves, which involves critical thinking. So first you have to know what is critical thinking. Critical thinking is to analyze information, formula responses formulate responses, to analyze information. Means critical thinking means what? First, you are in situation to analyze the situation. Suppose if I say that Holi should be restricted, for example, right? And that someone says, right? So you should be in situation to analyze the information according to your knowledge. That is called analyze the information, and then formulate responses. Then after thinking a lot, you would respond. That is called formulate responses, and understand the recipient's perspective. And you should understand the perspective, नज़रिया, आप क्या सोचते हैं. That is called critical thinking. तो first of all you have to understand what is critical thinking. तो broadly critical thinking means सोच समझ कर बोलना, right? Response करना is critical thinking. समझना, प्रॉपरली उसको समझना, किसी मैसेज को रिस्पॉन्ड करना इज क्रिटिकल थिंकिंग. दैन इमोशनल वैल्यूज, टू रिकग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस. किसी के इमोशंस हर्ट ना हो, राइट? सो फर्स्ट वी हैव टू रिकग्नाइज एंड मैनेज द इमोशंस, बोथ योर ओन एंड अदर्स, विच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हाउ मैसेजेस आर रिसीव्ड, है ना? तो कैसे आपके और दूसरों के मैसेजेस को, वैल्यूज़ को समझना, और वो कैसे 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 मैनेज होते हैं, उसको कहते हैं हम इमोशनल वैल्यूज़, है ना? फिर क्रिटिकल थिंकिंग इज़ डिफरेंट. नाउ क्रिएटिव थिंकिंग. व्हाट इज़ क्रिएटिव थिंकिंग? टू अडेप्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स. मतलब कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है उसको एडेप्ट करना, अभी नया मॉडर्न तरीका क्या है. फिर फाइंड इनोवेटिव वेज टू कन्वे मैसेजेस एंड एंगेज विद ऑडियंस. क्रिएटिव थिंकिंग, नए तरीके से, लेटेस्ट, हाउ मच अपडेटेड यू आर विद टेक्नोलॉजी, विद वोकैबलरी, विद वे ऑफ कम्युनिकेशन, है ना? दैट इज़ कॉल्ड क्रिएटिव थिंकिंग. क्या कितने नए तरीके से और कितने क्विकली और कितने efficiently if you communicate your points, that is called creative thinking.
तो कम्युनिकेशन में क्या है, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है. फिर नंबर 2, सिचुएशनल कन्वर्जेशन. जैसे ही सिचुएशनल कन्वर्जेशन आएगा, मतलब आपको यू विल बी गिवन अ सिचुएशन एंड यू हैव टू राइट द डायलॉग्स विच इज़ कॉल्ड सिचुएशनल कन्वर्जेशन. तो इसमें क्या है, मस्ट हैव पर्पस. सिचुएशनल पर्पस, एक तो सिचुएशन कन्वर्जेशन में पर्पस होना चाहिए. आर ड्रिवन बाय स्पेसिफिक गोल और रीज़न. सिचुएशनल कन्वर्सेशन कैसे चलता है, बाय अ स्पेसिफिक गोल और रीज़न. कुछ उसमें स्पेसिफिक गोल होगा. भाई कन्वर्सेशन के लिए देयर मस्ट बी एजेंडा, देयर मस्ट बी वन टॉपिक इन विच कन्वर्सेशन वी डू कन्वर्सेशन, है ना. फिर कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. फिर द मैसेज इटसेल्फ, कंटेंट, कोई मैसेज है वो कंटेंट है, एंड हाउ इट इज़ डिलीवर्ड, वो उसको एक्सप्रेशन कहते हैं, आर क्रूशियल for effective communication in any situation. फिर fluency alone does not guarantee a successful situational conversation. Suppose you have very good fluency in English or Hindi, that is not enough. Fluency is what? Must First thing is that you must have good knowledge about the subject, reasons you must have, data you have, that is important, and then your situational conversation will be fruitful. Next is the drawback of role play method. Role play means you have to play the role of one public figure. That is time consuming. Why? Because while role playing is valuable, it is often requires significant time for preparation. Suppose if I say that you just have to play the role of for females Sudha Murthy, for males any suppose APJ Abdul Kalam. So then you have to know about the person, right? Detail knowledge you must have about the person, that only you will be able to play the role. So that is time consuming because it needs preparation, execution, right? फिर debriefing, you just, and then very short you have to speak something productive, right? So that is the time consumption is a biggest problem. फिर then 44 sounds. How many speech sounds are there? 44 sounds are there. We have already studied in the class, but not detail. You don't need to know detail. That is in a 44 sounds, right? Then dash waiting for you since morning. So waiting for you since morning. So since morning means I dash waiting for you since morning. Since is indication of 3 times. I have been waiting for you since morning. क्यों? मॉर्निंग से फिर at the time of speaking, है ना, मैं कब से वेट कर रहा हूँ. तो here 3 times are meeting, past, present and little bit future, right? And that is why this is present perfect continuous. So have been, that is the appropriate option of have been. Same they are explaining here. Now next is I met an MBA N. Why N? M. They have written M, right? So that is, this is M. Or M means actually you have to speak A to M. Or A sound is vowel sound. That's why it will be followed by preceded by N. NMBA, है ना? तो इसका आंसर इज N. This is the answer. राइट. चलो नेक्स्ट इज व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार क्लास में बताया. बेसिक रूल्स क्या है? बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज ग्रामर. इसको बहुत ध्यान से एग्जाम में करना. ग्रामर, सिंटैक्स, प्रोनाउंसिएशन, पंक्चुएशन, है ना, ये है, और स्पेलिंग. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा ध्यान से इसको, और मैं बार बार कह रही हूँ कि यू कैन रिप्लाई, यू कैन राइट क्वेश्चंस फ्रॉम डे टू डे लाइफ. आपको बहुत सारे आंसर सोचोगे तो मिल जाएंगे. तो इसका मेन आंसर है ग्रामर. तो ग्रामर में आप बता देना.
what includes in grammar? Verb tenses, subject verb agreement, parts of speech, है ना. active passive इसमें नहीं है, this is not given here. You can write active passive. Rules you can discuss. Then narration, right? So that comes under grammar. Then syntax means arrangement of the words. So common arrangement of words are subject verb and agreement. ये बता देना. Subject then verb then sorry subject then verb then object. तो ये बता देना कि this order we follow in English language. So that is important. Then vocabulary. So building a broad vocabulary is essential for understanding and expressing oneself. So vocabulary is very important part to improve our language, है ना. फिर pronunciation, correct pronunciation is important. Suppose if you are pronouncing received, many a time this word is, the people say received, right? However, this is P is silent. So that's that is receipt. P is silent here. P का sound नहीं रहता. तो ऐसे बहुत number of words are there where you have to know the correct pronunciation, which is the part of rules of English language. तो ये बहुत अच्छे से करके आना, बहुत easy question है ये, है ना. फिर punctuations है ना, कहाँ comma, कहाँ where to put comma, where to put inverted comma, where to put what we can say that quotation mark and all, you have to know. Spelling plays a very important role in writing. Suppose you misspelled one word, so that their interference will be changed, right? So that is why spelling is very important part. Then another optional question was communication and globalization, right? So that's a very important question. Communication and globalization. See, communication is the backbone of globalization. Whole world. Right now you are the children of टेक्नोलॉजी, टेक्निकल एरा, है ना. आप तो कर ही रहे हो, बचपन से देख रहे हो. तो इसमें पूरा पार्ट बेस इज कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल बट कम्युनिकेशन. एज यू ओपन योर फोन, डांसिंग, सिंगिंग, पता नहीं कितने वेराइटी ऑफ थिंग्स यू सी इन योर फोन, बट दैट इज़ ऑल पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. कोई वर्ड्स के थ्रू बता रहा है, कोई रेसिपी में गाना बैकग्राउंड में चल रहा है बता रहा है, बट दैट इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, राइट. क्योंकि नॉन वर्बल है जिसमें वर्ड्स नहीं है पर एक्शन के थ्रू हो रहा है. तो दैट इज होल वर्ल्ड, द बैकबोन ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज कम्युनिकेशन. सपोज कम्युनिकेशन इज स्टॉप, नो सोशल मीडिया एंड एवरी गैजेट एंड एवरीथिंग विल बी फेल्ड, है ना. तो क्यों? इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड. इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, दैट इज़ ओनली फॉर कम्युनिकेशन. विद इन नैनो सेकेंड यू कैन सेंड योर मैसेज, वॉट यू वॉन्ट टू हैव, वॉट यू डोंट वॉन्ट टू हैव, दैट इज़ communication. So business communicate with partners and customers worldwide. तो पूरा business में communication जो होता है, बातचीत होती है, वो सब ग्लोबली जो बातचीतें होती है किसी भी लेवल पे बड़े बिजनेस होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. फिर कल्चरल एक्सचेंज. पीपल शेयर आइडियाज, ट्रेडिशंस, पर्सपेक्टिव्स क्रॉस बॉर्डर्स. आज की मैं अभी रील देख रही थी कि जर्मन के प्रेसिडेंट हैं, मुझे नाम तो भूल गई उनका, लेकिन वो होली खेल रहे हैं अपने मिनिस्टर्स के साथ. तो दैट इज़ ऑल्सो कल्चरल एक्सचेंज. तो हम भी उनके फेस्टिवल्स मनाते हैं. वी सेलिब्रेट वैलेंटाइंस डे, वी सेलिब्रेट ऑल डेज, मदर्स डे, फादर्स डे. दीज आर नॉट पार्ट ऑफ Indian culture, but then we celebrate so many festivals now, right? So that is cultural exchange. Why? Because of communication, which is how to celebrate, what should do, right? So these all are the part of cultural exchange, which is possible because of communication. So globalization and communication is intertwined, or that's a backbone of communication is the backbone of globalization. Then information flow, news, research, knowledge are disseminated globally. तो आपस में एक दूसरे को communication is possible because of न्यूज़, रिसर्च. कितनी रिसर्च होती है, पेटेंट होते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, विच इज़
बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. फिर डिप्लोमेसी, नेशंस कम्युनिकेट टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप. डायलॉग्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत होती है. बाउंड्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इंडिया की बाउंड्रीज में, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इधर बांग्लादेश है, वेन एवर वी हैव प्रॉब्लम, so then we communicate, we talk each other, है ना. तो because of communication. And last is technological advancements, global collaboration drives innovation. और क्या होता है, ग्लोबल हम एक दूसरे के साथ मिलके कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो इनोवेशन इज क्रिएटेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा पढ़ लेना, बट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना. फिर राइट द एडवांटेजेस ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग एज कंपेयर टू द मटेरियल शेयर्ड इन सोशल मीडिया. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. न्यूज़पेपर रीडिंग, आप तो इसका बेस याद रखो कि बेस इज दैट्स अ न्यूज़पेपर इज ऑथेंटिकेटेड, news are published in newspaper, whereas social media, no authentication, no check, right. Anything can be published, anything like anything, सब कुछ हो रहा है पब्लिक. तो क्रेडिबिलिटी की सबसे बड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग क्या है, क्रेडिबिलिटी. किसकी क्रेडिबिलिटी है, न्यूज़पेपर की. टिपिकली हैव हायर एडिटोरियल स्टैंडर्ड, उनका एक एडिटोरियल होता है, उनकी एक पूरी टीम है, एंड देन वो फैक्ट चेकिंग करते हैं, है ना, और उसके बाद आता है. वेयर एज सोशल मीडिया, नो फैक्ट चेकिंग, राइट, नो प्रोसेस, no what we can say restrictions are there, right. Then depth of coverage, newspaper provide in depth analysis and context, वो बहुत properly analyze करते हैं और फिर उसके बाद पब्लिश करते हैं. फिर स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन वेल ऑर्गेनाइज मैनर की. दिस इज़ पॉलिटिकल न्यूज़, दिस इज़ सोशल न्यूज़, पेज नंबर 3 है, तो दैट इज़ लोकल न्यूज़. तो स्पोर्ट्स न्यूज़, तो वहाँ स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती है, व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आउट ऑफ ऑल, तो उसमें उसको हाईलाइट करते हैं. तो इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज मैनर. पर सोशल मीडिया में देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन, एनीथिंग कैन कम एनी टाइम, राइट. फिर वाइड रेंज ऑफ टॉपिक. अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया ही देखो तो पहले पॉलिटिकल न्यूज़, फिर सेकंड पेज में जनरल न्यूज़, फिर थर्ड पेज लोकल न्यूज़, फिर लिखा रहता है न्यूज़ टाइम्स, सॉरी स्पोर्ट्स टाइम्स, फिर लिखा रहता है कि हाँ एडिटोरियल वाला पेज होता है ना. ऐसे अलग अलग उनके सेक्शंस हैं. तो दैट इज़ a range of topics they cover. Each topic, political, so technical, तो music, तो sports, तो पता नहीं सब कुछ. Physical format, the physical format of newspapers can enhance comprehension and retention. इनका एक फॉर्मेट है कि इस प्लेस पे एडवर्टाइज आएगा, यहाँ पे मेजर हेडलाइंस आएगी, बस इतना ही कवरेज हेडलाइंस को मिलता है. फिर आपने देखा होगा कंटिन्यूड लिखा रहता है, तो देन आफ्टर दिस डिटेल न्यूज़ यू कैन गो टू पेज नंबर सो एंड सो. सो दैट इज़ समवॉट, दैट्स अ फिजिकल फॉर्मेट, दे फॉलो फिजिकल फॉर्मेट, है ना. फिर लिसनिंग एंड रीडिंग इन लैंग्वेज लर्निंग. दूसरा इसका एक और क्वेश्चन था कि ये वाला, ये सोशल मीडिया जितना भी इसमें लिखा है इसका जस्ट ऑपोजिट आप सोशल मीडिया कर लेना. फिर नेक्स्ट ऑप्शन में आ सकता है क्वेश्चन, लिसनिंग एंड रीडिंग आर नेसेसरी पार्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, है ना. तो लैंग्वेज लर्निंग में लिसनिंग और रीडिंग नेसेसरी पार्ट है, तो कैसे है. तो देखिए इसको क्या है, ये है ना. तो लिसनिंग टाइप्स, एक्टिव और पैसिव लिसनिंग, है ना, और सिलेक्टिव लिसनिंग. क्लास में हम क्या करते हैं, कभी कभी हम बैठे रहते हैं लेकिन हम घर के बारे में सोचते हैं, फ्रेंड्स के बारे में सोचते हैं. कभी कभी हम बहुत ध्यान से सुनते हैं. ऐसा मेनी अ टाइम आई जोक इन द क्लास, इफ़ समवन इज़ मेकिंग इविल अगेंस्ट अस, हमारी कोई बुराई कर रहा है तो हम बहुत ध्यान से सुनते हैं ना, तो दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग. कभी कभी हम किसी से हमारा अगर थोड़ी सी हॉट टॉक हो गई एंड व्हाट शी और ही इज़ स्पीकिंग, सो वी लिसन केयरफुली, वी लिसन अटेंटिवली.
Why? Because that's a active listening, when we are very much active. So these are the examples of active listening. So paying full attention and engaging with the speaker, which is called active listening. But sometimes physically we are present but we don't want to listen, and then sometimes suppose I'm talking on phone but I'm doing other work on the phone, so that is not passive listening. We are acting that we are listening but sometimes we don't listen, that is passive listening. I can listen, I can hear voice outside, है ना, I'm not paying attention but still it is coming, it is coming to me. So that is hearing without actively processing the information, which is called passive listening. Selective listening, focusing on specific information. नहीं नहीं, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे ये बताओ सब, आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि मैं कहती हूँ मुझे ये बताओ कि उस दिन ये सब प्रॉब्लम हुई कैसे, तो दैट इज सेलेक्टिव लिसनिंग. कि कभी कभी हम अपने चैनल्स अपने ध्यान से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चैनल देखते हैं, दैट इज सेलेक्टिव लिसनिंग. समटाइम वी लिसन म्यूजिक, तो हम कुछ सिलेक्टिव गाने सुनते हैं, दैट इज सेलेक्टिव लिसनिंग. रीडिंग टाइप में क्या होता है, स्किमिंग होती है. स्किमिंग मतलब दही छाछ में हम बटर मिल्क मक्खन निकालते हैं, दैट्स अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग. तो क्विकली रीडिंग फॉर जनरल ओवरव्यू, जिसको हम खूब मत के और स्किम करके और बस हमको क्या खास है वो देखना है, दैट इज स्किमिंग, है ना. फिर तो वो इतनी जल्दी जल्दी जब हम दही को जल्दी जल्दी चलाते हैं तो फिर बटर आ जाता है ऊपर, तो दैट इज स्किमिंग. कि मेन इम्पॉर्टेंट, बस आप एक ओवरव्यू देख रहे हो. स्कैनिंग में क्या होता है, स्कैनिंग इज सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन. पूरा जैसे आप स्कैन करवा के लाते हो पेपर, तो ईच एंड एवरी थिंग यू जस्ट हैव टू रीड, एंड देन आपका किस पे इंटरेस्ट है तो उस पर आप उसको ढूंढने के लिए आपको यहाँ वो छूट ना जाए, तो देन यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी टॉपिक और एवरी थिंग, दैट इज़ कॉल्ड स्कैनिंग, जैसा हम स्कैनिंग करते हैं. फिर इंटेंसिव रीडिंग, रीडिंग केयरफुली फॉर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग. कि नहीं ध्यान से पढ़ो. Suppose you are reading one passage, so each and every question, each and every word you are reading carefully, that is intensive reading, है ना. रेमेडीज क्या है, लिसनिंग, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, यूज ऑडियो रिसोर्सेज एंड एंगेज इन कन्वर्जेशंस. आप अच्छा कोई ऐसा वीडियो ऑडियो सुन सकते हैं, एंड देन यू ऑल्सो सपोज यू आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग, दैट इज कॉल्ड that is the remedy of listening, how to improve your listening quality. तो अभी कोरोना टाइम में it was very common practice, that's a number of groups are made, and WhatsApp groups are made, and people used to recite poetry or short story, and they share their audio to the WhatsApp group, so that other people listen, other members of the group, they listen and then they react. So that is called listening. That is very useful remedy to improve your listening quality, because then when you listen any story or poetry or whatever, so you pay attention, that is remedy to improve your listening quality. As far as reading is concerned, so reading regularly, very important. Reading material, newspaper, I suggest newspaper, right? So read newspaper, it will improve your reading practice, right? Now next question may come, that's a story writing, right? So story writing or a stories telling is different. Story writing means involves creating अ नैरेटिव विद कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग, थीम. ये आपको याद करना पड़ेगा. स्टोरी राइटिंग में आपको कैरेक्टर्स भी बनाना पड़ेंगे, प्लॉट बनाना पड़ेगा, क्या होता है, सेटिंग बनाना पड़ेगी, थीम बनाना पड़ेगी. तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग. देन रिक्वायर्स इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड द एबिलिटी टू एंगेज द रीडर. तो आपको एक अच्छा इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि कैरेक्टर आप क्या लिख रहे हो, आप में कितनी क्रिएटिविटी है. Sometime one girl from your class, she came to me and she shared one story, and then at last, right from beginning we are thinking that who is the culprit, who is the murderer. बड़ा अच्छा स्टोरी सुनाई थी उसने, मैं नाम नहीं लूँगी उसका, आपकी क्लास की स्टूडेंट है वो. और लास्ट में फिर वो कोई और ही उसका कल्प्रिट निकलता है. पूरे स्टोरी जब हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि यस मदर इज़ कल्प्रिट, बाद में पता चलता है कि फादर उसका वो क्रिमिनल है. तो इस तरह का क्रिएटिविटी आप डाल सकते हो. फिर एबिलिटी टू एंगेज द रीडर,
कि भाई आपकी बात सुने, पूरे टाइम रीडर बहुत अटेंटिव होके आपकी बात सुने, दैट इज़ ब्यूटी, दैट इज़ योर राइटिंग स्किल, रीड राइट. फिर फोकस ऑन डेवलपिंग अ कंपेलिंग प्लॉट, बिलीवेबल कैरेक्टर्स एंड विविड डिस्क्रिप्शन. ऐसा ना हो कि आप कोई स्टोरी सुना रहे हैं, लोगों ने कहा अरे ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में. सो दैन समटाइम वी शुड स्पीक दिस वे, वी शुड राइट दिस वे स्टोरी राइटिंग में, कि लोग बिलीव करें कि ओके ओके इट हैपन्स, ओके हाँ येस इट हैपन्स विद मी. मतलब ऐसा बिलीवेबल कैरेक्टर्स वी शुड पेंट और वी शुड क्रिएट, है ना. फिर रिपोर्ट राइटिंग पे आते हैं. रिपोर्ट राइटिंग क्या है, दूसरा आपका ये आ सकता है रिपोर्ट राइटिंग. प्रेजेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर. आपका भी एग्जाम चल रहा है, पीयूई इज गोइंग ऑन, तो सपोज करिए कि वी आर सपोज टू एज अ फैकल्टी वी आर सपोज टू मेक report on PUE. So first let it be done, then we will make one report on PUE exam, right. तो रिपोर्ट मतलब होता है कि किसी पास इवेंट, इंसिडेंट और एक्सीडेंट का के बारे में बताना, दैट इज़ नरेशन, है ना. तो दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट, है ना. उसकी रिपोर्ट करना. रिपोर्टिंग कब करते हैं, जब कोई चीज़ हो जाती है. तो दैट प्रेजेंट्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इन अ क्लियर एंड कंसाइज मैनर. तो आपको बहुत डिटेल नहीं करना है और आपको बिल्कुल रियल फैक्ट्स बताना है. दैट्स अ मेजर पार्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, है ना. फिर फॉलोज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. कुछ भी अपने मन से फॉर्मेट नहीं बनाना, आपको एक उसका फॉर्मेट होता है हर रिपोर्ट का. मेडिकल रिपोर्ट का अपना होता है, एकेडमिक रिपोर्ट का अलग होता है, साइंटिफिक रिपोर्ट का अलग होता है, एनुअल रिपोर्ट का डिफरेंट फॉर्मेट होता है. तो एवरी फॉर्मेट, सो वी शुड बी फैमिलियर विद द फॉर्मेट एंड देन वी शुड फॉलो द फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट वी शुड राइट report, including an introduction, methodology, findings and conclusion. These are the part of format actually. So we should write introduction, then methodology we should write, findings means outcome, what's the outcome after this we should write, and conclusion, finally what's the conclusion. One part is left here, that is recommendation. Apart from this, in report, this is writer's responsibility to give any suggestion or recommendation, right. So that is there. Then emphasizes objectivity, accuracy and clarity. We should not give our view, what I think. Suppose TV reporter, right. So then they give their report, what I think personally. No, they cannot say. कोई भी आप टीवी रिपोर्टर को देखो, तो अगर अंजना ओम कश्यप ये कहने लगे आज तक में कि मैं ऐसा सोचती हूँ, तो वो क्या सोचती है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं. तो दैट इज सब्जेक्ट. अगर इफ शी इज speaking this way, what I feel, it should not be like this, it should be like this, so that is subjective. So report writing always written objectively means we should not get involved ourselves. हम नहीं उसमें इन्वॉल्व होते, which this approach is called objective, है ना. एक्यूरेसी होना चाहिए. आप शायद वायद वाला, परहैप्स और probably possibly can, these words can not be used. क्लैरिटी होना चाहिए, है ना. फिर दूसरा शॉर्ट आपका नोट आ सकता है डेली एंट्री, है ना. डेली एंट्री, डेली डायरी इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग डेली इवेंट्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स. हम लोग जब छोटे थे तो वी वर सजेस्टेड बाय आवर पेरेंट्स टू राइट डेली डायरी. आपने दिन भर में क्या किया, तो उसमें आप बहुत पर्सनल इमोशनल चीज़ें नहीं लिखो, लेकिन येस यू शुड राइट अ डेली डायरी. उसमें क्या बता रहा है वो, इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग डेली इवेंट्स, आज क्या क्या हुआ, तो यू जस्ट हैव टू रिकॉर्ड योर डेली इवेंट्स. फिर थॉट्स, दिन भर में क्या हुआ, थॉट्स आपको लिखना. एंड फीलिंग्स इन पर्सनल जर्नल और डायरी, राइट. फिर प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ. और साथ में आप से कल जो मिस्टेक हुई है वो अगर आपने आज रिमूव की है, तो दिस वे सपोज यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया अबाउट एनी प्रॉब्लम्स एंड देन टुडे you have found one solution of anything, so you should mention in the diary. That is called diary entry, and then can be written in any style depending on personal preferences. इसका कोई format नहीं होता है. You can write by your own, by your choice, by your convenience, right. Now next, what are the do's and don'ts in a group discussion.
तो ये क्वेश्चन में डूज और डोंट्स ग्रुप डिस्कशन के और राइट कन्वर्जेशन ऑफ एनी वन टॉपिक, है ना। तो पहले देखते हैं कि डूज एंड डोंट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं। डूज होते हैं लिसन एक्टिवली, पे अटेंशन टू अदर्स पॉइंट। तो आप बहुत ध्यान से सुनो। डूज में जब आप ग्रुप में बैठे हो तो सबसे पहले वी शुड लिसन एक्टिवली, है ना। एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। नंबर 2, बी रिस्पेक्टफुल, एक्नॉलेज एंड value different perspective, because if you are sitting in the group and group discussion is going on, definitely there will be differences, different opinions are there. So differences of opinion, which we should respect the differences of opinion, and we should not cut, we should not louder, right. We should be very much calm and composed and listen others and respect others views also. So that is the part, that's the do of group discussion. Then contribute relevant information. तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स होना चाहिए। शेयर इनसाइट्स एंड एग्जांपल्स। तो आप अगर आप बहुत पढ़ते ही रहते हो साल भर, तो डेफिनेटली विल बी इन सिचुएशन टू गिव नंबर ऑफ एग्जांपल्स, फैक्ट्स, फिगर्स, डेटा, सर्वे, short story, right, and current affairs. So that you definitely will be listen. So this is contribute relevant information, है ना। फिर इससे फोकस, और आप पॉइंट से डिवेट मत हो। पता चला कि पॉइंट इज दैट, फॉर एग्जाम्पल टॉपिक इज दैट्स इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज नॉट प्रैक्टिकल, नॉट फ्रूटफुल, फॉर एग्जाम्पल। तो पता चला आप करते करते पर्सनल में आ गए, और आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के आप सपोज यू आर डिस्कसिंग समथिंग एल्स, जो उस पॉइंट में से निकल कर आई है एक बात, आप उसी पे अटक गए, तो दैट शुड नॉट बी। तो वी शुड बी फोकस, स्टे फोकस्ड, है ना। तो स्टिक टू द टॉपिक एंड अवॉइड दैट्स अ टेंजेंट्स। तो जो अदर पॉइंट्स हैं वो बस रेफरेंस में आते हैं। फिर मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, engage with all participant। आपको आई कॉन्टैक्ट बनाना है, दैट शोज दैट रिफ्लेक्ट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो, है ना। अच्छा, डोंट्स क्या है, जो नहीं करना है आपको, वो क्या है। डोमिनेट द कन्वर्जेशन, कि नहीं मेरी बात लोग सुने, अलाउ अदर्स टू स्पीक, हमेशा खुद ही बोलना, तो नो, वी शुड नॉट डोमिनेट। तो दैट इज डोंट, राइट। देन इंटरप्ट अदर्स, दूसरे कोई बात कर रहा है, अपनी बात पूरी नहीं कर रहा है, अगर हम बीच में बोल रहे हैं, तो वेट फॉर योर टर्न टू स्पीक, तो आपको वी हैव टू वेट, है ना। फिर बी एग्रेसिव और आर्ग्यूमेंटेटिव, और एक्सप्रेस डिसएग्रीमेंट रिस्पेक्टफुली। तो हमें दूसरों का भी रिस्पेक्ट करना है, उनके आर्ग्यू का, उनके सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बी एग्रेसिव, आपको बहुत एग्रेसिव नहीं होना है, बहुत आर्ग्यूमेंटिव, हर बात में आर्ग्यू नहीं करना है ना। फिर गेट ऑफ टॉपिक, गो ऑफ टॉपिक, सॉरी, स्टे फोकस्ड ऑन डिस्कशंस पर्पस, राइट। तो आपको फाइनली पर्पस क्या है, आप किस लिए बैठे हो, किस बात पे डिस्कशन हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको देखना है, नहीं तो आप आउट ऑफ ट्रैक मत हो। ये दीज आर द डोंट्स, है ना। यूज़ ऑफेंसिव लैंग्वेज, कभी कभी हमारी बात कटती है या, तो वी शुड नॉट यूज़ एनी ऑफेंसिव लैंग्वेज, वी मेंटेन प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल टोन, है ना। फिर कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन क्या है, प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन। तो आप ये पढ़ लेना कन्वर्जेशन, हे आर यू रेडी फॉर आर प्रेजेंटेशन नेक्स्ट वीक, है ना। अपन 2 पर्सन बात कर रहे हैं, तो दूसरे कह रहे हैं आई हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन द स्लाइड्स बट आई एम स्टिल अ बिट नर्वस अबाउट द डिलीवरी। तो फिर ए कहता है लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, चलो एक साथ ही प्रैक्टिस कर लेते हैं। वी कैन रन थ्रू द प्रेजेंटेशन एंड गिव ईच अदर फीडबैक, हम एक दूसरे के प्रेजेंटेशन देख भी लेंगे और एक दूसरे को फीडबैक देंगे। दैट्स अ ग्रेट आइडिया, आई एम वरीड अबाउट रिमेंबरिंग ऑल द की पॉइंट्स। तो वो कहता है, ए कहता है वी कैन क्रिएट क्यू कार्ड्स with bullet points to help us stay on track and remember to speak clearly and maintain eye contact। वो क्यू कार्ड सब समझते होगे ना, बच्चे कंपेयरिंग करते हैं तो हाथ में छोटे छोटे कार्ड्स रखे रहते हैं, उसको क्यू कार्ड कहते हैं। तो फिर पर्सन बी कहता है कि ओके दैट साउंड्स गुड, हाँ ये अच्छा रहेगा, लेट शेड्यूल अ प्रैक्टिस सेशन
फॉर टुमारो, तो चलो हम एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, यहाँ बात ख़त्म हो जाती है। इस तरह से आपको डायलॉग्स लिखना है ना। फिर व्हाट आर द बेस्ट वेज फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, है ना। या दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो देखो बेस्ट वेज ऑफ लर्निंग इंग्लिश, इमर्शन, सराउंड योर सेल्फ विद इंग्लिश, मूवीज़ देखो, म्यूज़िक देखो, इससे आप इंग्लिश लर्न कर सकते हो। कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, डेडिकेट टाइम टू स्टडिंग एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली, आपको टाइम देना पड़ेगा, नो पेन नो गेन, सो वी हैव टू डू प्रैक्टिस रेगुलरली, राइट। एक्टिव लिसनिंग, लर्निंग, एंगेज इन कन्वर्जेशन, राइट एसेज एंड पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। दैन यूज़ लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स, बहुत सारे लैंग्वेज लर्निंग ऐप्स है, यूटिलाइज ऐप लाइक ड्यूओलिंगो, बेबल और मेमराइज, ये सब आप देख सकते हो करके। फिर फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर, अच्छे फ्रेंड्स कहते हैं मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, हमारे फ्रेंड्स हमारी बहुत मदद करते हैं, तो आप अच्छे दोस्त बनाओ, तो उससे क्या होगा, आपका पार्टनर। प्रैक्टिस स्पीकिंग विद अ नेटिव स्पीकर इंग्लिश, उनके साथ बोलो। फिर फाइंड अ रेगुलर पार्टनर जो आपके साथ बातें करे रोज़। फिर रीड एक्सटेंसिवली, और खूब अच्छा पढ़ो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बुक्स पढ़िए। फिर वॉच इंग्लिश मूवीज़, फिर टेक ऑनलाइन कोर्सेस, है ना। और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये अलग है, ये क्वेश्चन अलग है। ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, सोर्स लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओरिजिनल लैंग्वेज, आप अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो किसी मैटर को, तो दोनों लैंग्वेज में आपकी अच्छी खासी नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। फिर टारगेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसमें टारगेट मतलब जिसमें करना है वो, उसमें भी आपकी अंडरस्टैंडिंग, एक्सीलेंट कमांड ऑफ द लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू। फिर कल्चरल कॉम्पिटेंस, अंडरस्टैंडिंग द कल्चरल नॉन्सेज ऑफ बोथ लैंग्वेजेस, कि आपके कल्चरल जो भी कॉम्पिटेंस है वो अच्छा होना चाहिए, माने आपको वहाँ के कल्चर, क्योंकि लैंग्वेज एंड कल्चर को एग्जिस्ट, तो दोनों लैंग्वेज अगर आपको पता है तो वहाँ का कल्चर यू हैव टू बी फेमिलियर विद, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट फेमिलियर विद कल्चर मीन्स दैट ट्रांसलेशन, गुड ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज ऑल्सो। फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज़, नॉलेज ऑफ टॉपिक बीइंग ट्रांसलेटेड, क्या टॉपिक है उसके बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ होती है। जैसे मेडिकल होता है तो डॉक्टर्स को बुलाते हैं, वो उस मेडिकल का मैटर को अच्छे से ट्रांसलेट करते हैं, है ना। फिर अगर कोई इंजीनियर है तो वो उससे रिलेटेड टॉपिक्स को करेगा, तो इस और फिर प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग स्किल्स। और फिर लास्ट में मैं किसी को क्रॉस चेक करवाना, प्रूफ रीडिंग करना मतलब पूरा बनाने के बाद हम आपके पेपर बनाते हैं तो हम बार बार चेक करते हैं, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, कभी हम बोल के टाइप करते हैं तो बोलने में कुछ का कुछ टाइप हो जाता है, तो दीज थिंग्स शुड बी टेकन केयर, राइट। तो मैंने एक छोटा सा ये वीडियो में आपकी हेल्प करने की कोशिश की है, तो ट्राई टू रीड इट आउट और देखो, फिर आप पेपर करो इसमें। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी टाइम, ओके। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।